Alright, good morning. Welcome back. We are doing the second lecture for the chapter Control and Coordination, right? In the first class, we have discussed types of nervous system, three types of nervous system: CNS, उसके बाद PNS के अंदर SNS and ANS. We spoke about different components which are included under CNS, under PNS. राइट सो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. अब हम वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन ब्रेन. राइट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीएनएस दैट इज ह्यूमन ब्रेन. हमने ये बात किया था कि हम सीएनएस को अलग से पढ़ेंगे, उसके बाद पीएनएस को अलग से पढ़ेंगे एंड एएनएस इतना डिटेल में हमको नहीं है, तो हम एएनएस को सिर्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे. वी डोंट हैव इट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. कूल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन ब्रेन. Right? So in the last class we also spoke about something that human brain is supported or it is properly held by a structure called as cranium or also called as the brain box. Right? So cranium के अंदर there are three layers which are protecting the brain. इसलिए इसको matter बोला है, not matter. Right? तो तीन layer from outside to inside are dura mater, arachnoid mater and pia mater. Pia mater is directly in contact with the cerebrum. Right? So पहले तो हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या है, then we'll talk about the functionalities of the different parts. Is that very clear? Right? So human brain is referred to as encephalon. Human brain is referred to as encephalon, right? Anything and everything related to brain is associated with encephalon. For example, अगर हमको brain की एक टेक्निक है which is called as EEG, electroencephalography, where the electrical activity of the brain is basically checked. आपने ये देखा रहेगा ना कि एक ऐसा हेलमेट जैसा चीज पहनाते हैं जिसमें बहुत सारी वायर्स होती है ना, और वो वायर से चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर ब्रेन. Right? So we understand that your brain is one particular organ which is producing maximum amount of electric impulses. मतलब brain एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा एपी सेंटर है जहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकल रही है. Right? So when you talk about human brain, we have understood only a little portion of the human brain. Right? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है हमको कि why did not we study. There are a lot of scientists who are working on this particular topic with respect to the brain, but then एक चीज ये हमको याद रखना है कि we only know a little portion, approximately 20% of the brain, right? So and in that 20% of the brain we are able to control different activities, we are able to control different activities of your body, and we are also able to control associate with the stimuluses which are coming from the outside, stimuli which is coming from the outside. Right? So brain एक complicated structure है, एक बहुत ही delicate structure है. Right? Any particular damage to the brain will absolutely damage the entire organism. Right? आपने paralysis सुना है, आपने epilepsy, fits and convulsions सुना है, ये सब brain related diseases है. At the end of the chapter we will talk about certain brain related diseases. Today I will also give you, in this particular lecture I will also give you two research topic. Right? ये research topic वो है जो आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ लेना है. Tomorrow we will discuss, or in the next class we will discuss those research topic in the class. Right? आपको internet sources use करनी है and you have to write down or you have to make notes. Approximately 5 to 6 points is absolutely enough. Just the name of the concept and a few examples. जितना आपके समझ में बैठ रहा है उतना आप समझ लो और लिख लो. In case do not get into extremely high fun words. Okay? तो जो आपको जितना भी आपको समझ में आ रहा है उतना आप उसके आप नोट बना लो. So we talk about two research topics in this particular class. Is that very clear? So getting back to human brain again. So approximately human brain का weight क्या है ना? Human brain also referred to as encephalon, approximately weighs to 1200 to 1400 grams. ठीक है, और बॉडी का 20% ऑफ ग्लूकोज यूज कर रहा
योर ब्रेन रिक्वायर्स ग्लूकोज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा अबाउट समथिंग अबाउट मिरर न्यूरॉन्स, राइट। 20% of your body का टोटल ग्लूकोज, योर ब्रेन कैन नॉट लिव इन स्कैर्सिटी ऑफ ग्लूकोज, है ना। इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हो, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अरे, और अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आपने कुछ भी नहीं खाया है एंड यू कम बैक टू क्लास, यू फील स्लीपी। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन इज not getting adequate amount of glucose, and since it is not getting adequate amount of glucose, it is not able to metabolize ATP, and brain की electrical activity के लिए ATP is the must. Even when you are sleeping, ATP is being used by your brain. Approximately 30% of your total body ATP is being used by your brain, consumed by your brain. आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी ब्रेन उसको ATP को यूज करते रहेगा, right? So see, understand, when you are sleeping in this particular concept, right? अब आप सो रहे हो, but सोने के टाइम you are not doing any type of activity, you are not doing any type of physical activity, but there is some type of mental activity or psychic activity which is going on. That is why you experience dream. Is that right? कुछ लोग नींद में बात करते हैं, कुछ लोग नींद में चलते हैं, ये सब subconscious activity of the brain है. That means brain is never non-functional, कभी नहीं होगा ऐसा. Is that very clear? Right? तो on an average ये weight है, right? On an average कितना % of glucose requirement है, right? And also with respect to O2 की भी requirement बहुत ज्यादा है brain के लिए, right? On an average अगर 4 minutes का ब्लड सप्लाई लिमिट हो जाएगा, 4 minutes का ब्लड सप्लाई, I will put up a word, decreased blood supply or absence of blood supply will cause brain death, causes brain death. ठीक है बेटा? So that is all basic introduction with respect to human brain, right? अब इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इतना लेस नोन स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, बट जितना हमको पता है दैट इज ऑल्सो वेरी वास्ट फॉर आवर सिलेबस, राइट? सो नाउ हियर when you talk about the capacity of your brain, right? Some people are extremely intelligent, some people are not intelligent. I will not say not intelligent, but then they are intelligent in some other aspect. Like for example, someone is a good painter, someone is a good writer, someone is a good dancer. So all of these qualities which you see, all of these abilities or talents which you see is due to the development of certain centers in your brain, right? ये ब्रेन में there are several centers. Some people are extremely fluent. किसी लोगों की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, किसी लोगों की बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है. Some people get easily depressed. Some people are extroverts. Extroverts referring to you can make friends, you can talk to any particular individual on this earth. But some people are introverts. They only speak to themselves. They only speak to a limited set of people. So all of these thought processes, all of these activities are really controlled by your brain. So chalo, let's get into the internal anatomy of the brain. What we have drawn here is a LS of the brain, LS of the human brain, lateral section of the human brain. This diagram is given in your NCERT. In extreme rare cases ये diagram आपको पूछेंगे, वो diagram बनाने को पूछेंगे 3 मार्क के लिए, or else in your exam you are expected to know the labels, right? अब यहाँ पे दिक्कत क्या जाती है बेटा? When you label the diagram, your brain does not have specific organs inside. It is a dispersed, diffused tissue. Are you understanding it? मतलब अगर आपने ब्रेन को लिया, कट किया, तो आपको ऐसा अलग अलग सेक्शन नहीं दिखेगा, ये लाल कलर का सेक्शन है, ग्रीन कलर का सेक्शन है. इट इज जस्ट अ डिफ्यूज्ड टिश्यू. सो वो टिश्यू के हिसाब से हम रीजन आइडेंटिफाई करेंगे. इट इज जस्ट लाइक प्लॉटिंग. इट इज आपने कट किया है, आपके पास एक लैंड पीस है, राइट? उस लैंड पीस का वो वाला हिस्सा नॉर्थ है, वो वाला हिस्सा ईस्ट है, वो वाला हिस्सा. So technically, when you get a section of the brain, lateral section of the brain, there are certain diffused areas which we will try to understand. Cool. आपको मैंने regular lectures में I have told you a very beautiful concept of dream. I have also told you the concept of cerebral capacity. We have also discussed a movie called as Lucy in the
class, right? Because it has to, it is an exceptionally out of the world movie, which इसलिए मैंने वो डिस्कस किया था, because that is somewhere down the line intentionally it is talking about your intelligence, right? So come back with respect to human brain. Let's try to understand the parts of the human brain, and then we will try to label this diagram together, right? So I am erasing this much for now because I would require a little amount of space here. Okay, so let's try to understand human brain को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, ठीक है? For our better understanding, we have divided human brain into 3 sections. So first is called as forebrain, the other is called as midbrain, and the other is called as hindbrain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Your forebrain is also referred to as prosencephalon. कोई दिक्कत? प्रो मतलब फर्स्ट, राइट? prosencephalon, encephalon, ठीक है? prosencephalon. Midbrain is also called as mesencephalon, and hindbrain is called as rhombencephalon. अब इसको rhombencephalon क्यों बोला? इसको prosencephalon बोला, इसको mesencephalon बोला, उसको कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? मतलब कुछ और पार्ट क्यों नहीं बोला? मतलब प्रोजेन, मीजन एंड मेटन कुछ अलग टर्म क्यों नहीं दिया? Why do you call it as rhombencephalon? ये rhombencephalon comes back to a word called as rhombus. अब मैथ्स में आपने rhombus पढ़ा हुआ है, राइट? सो अगर आपने मिडब्रेन के पोर्शन को निकाला, मिडब्रेन नहीं माय मिस्टेक, अगर आपने हाइंडब्रेन के पोर्शन को निकाला है, टेबल पे ऐसे रख दिया, तो इट अपीयर्स टू बी अ rhombus like, it will give you a rhombus like shape, इसलिए rhombencephalon. Cool. So forebrain, prosencephalon, midbrain, mesencephalon and hindbrain, rhombencephalon. ठीक है? अब forebrain में we will try to understand different parts of the forebrain. So forebrain में पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं the first part of forebrain, which is called as rhinencephalon. Rhinencephalon. ठीक है? Rhinencephalon is your olfactory lobe. Olfactory lobe. ये एक अलग सा लोब है. It is not seen outside. It is seen inside. It is again a structure which is diffused inside. एक छोटा सा bulb-like structure है, which you can see here. ठीक है? So rhinencephalon, also called as olfactory lobe. So ये जो आपको दिख रहा है, that is your rhinencephalon. Now what is the role of rhinencephalon? नाम बता रहा है. राइनेन का मतलब क्या? राइनो का मतलब है राइनोसरस, वो ऑर्गेनिज्म जिसके नाक पे हॉर्न है, राइट? राइनाइटिस इज कॉमन कोल्ड. सो राइनो रेफर्स टू नोज, राइट? है ना? आपको मैंने एक बताया था कि सुश्रुत द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, राइट? सुश्रुत द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, उसके बुक में उसने पूरा प्रोटोकॉल लिखा है फॉर राइनोप्लास्टी. ही यूज्ड टू डू राइनोप्लास्टी इन दैट एरा, राइट? सो उस टाइम पे, सो राइनो, जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हिच आई गिव यू. सो rhinencephalon हमको समझता है इज एसोसिएटेड विद द स्मेल. अब जब मैं स्मेल की बात करता हूं, there are some smell with odor, there are some components without odor, right? There are gases, there are components or molecules which have sweet odor, pungent odor, है ना? And some irritating odor, जैसे क्लोरीन इरिटेट करता है, right? And जैसे H2S also is pungent odor, and perfume is a very sweet odor. Similarly, there are also certain other components called as जो odorless है, they are called as pheromones, right? Now these pheromones, again ये extra topic है, these pheromones are associated with male and female attraction. ये pheromone का जो concept is also seen in a lot of animals. Apart from humans, it is also associated with a lot of animals. आपने एक classic example है कि अगर एक चींटी चल रही है
हाँ, अगर एक चींटी चल रही है तो उसके पीछे पीछे दूसरी चींटी फॉलो करती है, एंड दैट इज हाउ दे फॉलो अ ट्रेल ऑफ एंट्स, राइट? सो दिस ट्रेल ऑफ एंट इज ड्यू टू फेरोमोन्स. The preceding ant will leave certain pheromones which is being sensed by the succeeding ant, and the succeeding ant will again leave pheromone. So that is how a trail is being followed. समझ में आ गया? अगर आपने ट्रेल को डिस्टर्ब भी कर लिया थोड़ी देर के बाद वापस वो ट्रेल आ जाएगा, राइट? सो ये फेरोमोन्स है. इन ह्यूमंस और इन अदर्स, इन हायर ऑर्गेनिजम्स, these pheromones are associated with male and female attraction. Is that very clear? तो ये सब कंपोनेंट्स जो है ये तुम्हारे राइनेंसेफेलॉन दैट इज ओल्फैक्टरी लोब से पास होंगे, राइट? एंड दीज ओल्फैक्टरी लोब विल देन मीट एट अ रीजन कॉल्ड एज टेम्पोरल लोब. सो ओल्फैक्टरी लोब सामने की तरह है, फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड इट एंड्स एट द रीजन कॉल्ड एज, इट एंड्स एट द ओल्फैक्टरी रीजन व्हिच इज इन द टेम्पोरल लोब. यहां पे ठीक है. सो ऑल योर स्मेल इज एसोसिएटेड इन द टेम्पोरल लोब. स्मेल का अंडरस्टैंडिंग इज एसोसिएटेड, इंटरप्रिटेशन इज एसोसिएटेड विद द टेम्पोरल लोब. अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? वी आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ स्मेल. वी आइडेंटिफाई कि अरे ये यूरिन का स्मेल है. वी आइडेंटिफाई कि अरे ये लकोस्ट परफ्यूम का स्मेल है. वी आइडेंटिफाई कि अरे ये तो मस्त कोई टाइप के कोलोन का स्मेल है, right? So we associate and we interpret it. Next time when we smell that particular same odor, तो हमारी बॉडी, हमारी ब्रेन ये इंटरप्रिटेशन को एसोसिएट करने लगती है. It is trying to recollect that particular odor which you have smelled, right? So हर एक particular sense के हिसाब से every particular, there are 5 senses of your body which we already did in the last class, right? So every particular sense is associated with the area called as association area या memory area. हर एक स्पेशल सेंसेस का एक मेमोरी एरिया है जहां पे the information with respect to that particular stimulus is stored, and next time when you experience the same type of stimulus, next time when you experience the same type of stimulus, the memory is being interpreted and you will be able to identify कि हाँ ये same type का smell है. Is that very clear? So we'll talk about that. So ऐसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, वहां पे हम simultaneously label करते जाएंगे, ठीक है? तो again, so this is rhinencephalon. Where does the rhinencephalon open? It opens in the temporal lobe of the cerebrum. Cool. So rhinencephalon हो गया associated with smell. दूसरा पार्ट है जिसको बोलते हैं बेटा cerebrum. Cerebrum is the largest part of your brain. It holds the maximum proportion of your brain, largest part of the brain. ठीक है. Cerebrum को हम दूसरा नाम देते हैं. Cerebrum is also referred to as telencephalon. Telencephalon. देखो आपको एग्जामिनेशन में आपको ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि वो सेरिब्रम ही दे, ठीक है? फाउंडेशन लेवल में आपको ये सब नाम याद करने हैं, ठीक है? सो टीलेंसेफेलॉन, टीलो का मतलब है एंड. अब ये पार्ट टीलेंसेफेलॉन कैसा हो गया? टीलेंसेफेलॉन तो इधर होना चाहिए क्योंकि ये एंड में है, राइट? सो यहाँ पे टीलेंसेफेलॉन क्यों बोला गया? बिकॉज़ अगेन अ रीजन व्हेन यू टॉक अबाउट द एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है? जब आप ब्रेन की बातें करते हो कि ब्रेन का फॉर्मेशन की बात करते हो, सेरेब्रम इज द पार्ट व्हिच कंप्लीटली फॉर्म्स एट द एंड, ठीक है? मतलब आपका जब मैं एक एम्ब्रियोजेनेसिस बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द नर्व कॉर्ड, सो सबसे पहले प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है दैट इज द नर्व कॉर्ड, right? So nerve cord it keeps on extending and it forms a neural crest. Neural crest समझते हो? एक ऐसा रूफ बनता है और ये रूफ न्यूरल क्रेस्ट हेड रीजन में एक रूफ बनता है. ये रूफ में से न्यूरॉन्स they travel, technically they spread across your body, right? और कंप्लीट फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो सेरिब्रम इज दैट पार्ट जो लास्ट में कंप्लीटली फॉर्म होकर डेवलप हो जाता है. Is that very clear? So that is why it is called as telencephalon, that part of the brain जो लास्ट में कंप्लीट होता है. Is that right? So telencephalon हो गया. उसके बाद थर्ड पार्ट है something called as
डायनसेफेलॉन। अब डायनसेफेलॉन का दूसरा नाम है, डायनसेफेलॉन का दूसरा नाम है थैलामिनोसेफेलॉन। थैलामिनोसेफेलॉन, ठीक है। डायनसेफेलॉन का दूसरा पार्ट क्या बेटा? थैलामिनोसेफेलॉन। सो लेट्स ट्राई टू लेबल दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा है ये दैट इज योर सेरिब्रम, सो वी विल लेबल इट एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अब डायनसेफेलॉन जो है, डायनसेफेलॉन इज मेड ऑफ इवन मोर, इट इज मेड ऑफ 3 more स्ट्रक्चर्स। डायनसेफेलॉन इज कंप्लीटली 3 स्ट्रक्चर से बना है, या फिर थैलामिनोसेफेलॉन इज मेड ऑफ 3 more structures, that is epithalamus, thalamus and hypothalamus, ठीक है। एपीथैलामस अभी लेबलिंग के लिए लिखा है हमने, एपीथैलामस, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस, कूल। सो नाउ ये आपको जो दिख रहा है अंडे के जैसे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग शेप स्ट्रक्चर जो ऐसे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है, राइट। सो दैट एग शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दिस रीजन इज कॉल्ड एज थैलामस। इसका ऊपर वाला रीजन इज कॉल्ड एज एपीथैलामस, इसका नीचे वाला रीजन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलामस। इज दैट वेरी क्लियर? सो ये रीजन हमने यहाँ पे एपीथैलामस लिखा नहीं है, दिस रीजन इज योर थैलामस, ठीक है। और ये जो रीजन आपको एपीथैलामस के नीचे वाला जो रीजन है दैट इज रेफर्ड टू एज हाइपोथैलामस। सो हाइपोथैलामस इज आल्सो रेफर्ड टू एज योर, हाइपोथैलामस इज आल्सो रेफर्ड टू एज योर सुप्रीम कमांडर, बिकॉज़ हाइपोथैलामस आपका एक मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, एंड दैट मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी। कूल। सो एपीथैलामस, थैलामस and hypothalamus, this is a 3-dimensional structure, guys. It is a 3-dimensional structure. Is that very clear? So that is all with respect to forebrain, ठीक है। मिड ब्रेन आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। आपको हाइंड ब्रेन दिख जाएगा, मिड ब्रेन आपको अंदर दिखता नहीं है। मिड ब्रेन एंड योर हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टुगेदर, टेक्निकली बोलने का मतलब ये है कि मिड ब्रेन आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। Is that right? So पहले we try to understand the parts, and then when we do midbrain in detail, I will give you a diagram and we try to understand that. Cool. So midbrain is further divided under 2 major sections. 2 major sections, that is corpora quadrigemina, corpora quadrigemina and cerebral peduncle, cerebral peduncle, ठीक है। corpora quadrigemina and cerebral peduncle. Now here corpora का मतलब है body, right? This word corpus, ये वर्ड आता है एक इंग्लिश वर्ड, मतलब दिस इंग्लिश वर्ड आया है लैटिन वर्ड कॉर्पस से, राइट। वी नो एन इंग्लिश वर्ड कॉल्ड एज कॉर्प्स, CORPSE। कॉर्प्स का मतलब क्या है? डेड बॉडी, मतलब घूम फिर कर बात क्या है? बॉडी। कॉर्प्स का मतलब है बॉडी, कॉर्पस का मतलब है बॉडी। कॉर्पस का प्लूरल क्या हुआ? कॉर्पोरा। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्री मतलब 4, जेमिना मतलब जेमस्टोन्स। These are those part of your body, these are those part of your brain जो 4 जेम फॉर्म में है, 4 जेम्स के फॉर्म में है, ठीक है, और 4 बॉडी है। Now why are they called as gems? Because they are extremely important. ये extremely important feature है with respect to humans, right? With respect to mammals. So mammals में corpora quadrigemina दिखता है। अब corpora quadrigemina का फंक्शन क्या होगा? इट इज एसोसिएटेड विद मूविंग योर हेड, मतलब यहाँ पे corpora quadrigemina में 4 जेम्स है ना, तो 4 जेम्स को हमने नाम दिया है कॉलिक्यूलाई, ठीक है। 4 जेम्स हैं
जिसको हमने नाम दे दिया है कॉलिक्यूलाई। आई थिंक आई शुड नॉट बी पुटिंग दिस बिकॉज़ दिस अगेन इट विल बिकम वेरी बैड, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड एज, चलो मैं ओरली बता देता हूं आपको बेटा। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिटोमेना के चार पार्ट्स है, चार जेमस्टोन्स है, दो ऊपर की तरफ है, दो नीचे की तरफ है, ठीक है। ऊपर की तरफ वाले को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई या ऑप्टिक कॉलिक्यूलाई। कॉलिक्यूलाई लिख देता हूं, consists of 4 colliculi, ठीक है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि दो ऊपर की तरफ है, दो नीचे की तरफ है। ऊपर वाला इज कॉल्ड सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वाला इज कॉल्ड एज इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का दूसरा नाम है ऑप्टिक कॉलिक्यूलाई, मतलब समथिंग रिलेटेड टू आईज। एंड नीचे वाला का नाम है ऑडिटरी कॉलिक्यूलाई, मतलब समथिंग रिलेटेड टू योर ईयर्स, हियरिंग, राइट। सो नाउ मिड ब्रेन का मेजर ये क्या है, इट इज रेगुलेटिंग दीज टू सेंसेस। दोनों अलग अलग सेंसेस है, विजन इज अ डिफरेंट सेंस, राइट, एंड हियरिंग इज अ डिफरेंट सेंस। बट कभी होता है ना, ओ राजू ऐसे किसने बुलाया था, उसी तरफ घूमते हैं, हमारा सिर उसी तरफ घूमता है, राइट। सो हियर what are we associating? We are associating vision with respect to sound. किसी ने आपको आवाज दिया, राइट, तो हम उसी डायरेक्शन में घूमते हैं, because your sound stimuli is associated with your brain, associated with your vision. So in other words, घूम फिर कर बात क्या है, ये क्या करवा रहा है, it is causing the tilting of the head in the direction of the sound. Very clear? ये सिर्फ हमारे पास है, ये सिर्फ हमारे पास ये ability है। Is that very clear? Dogs के पास ये ability है, cats के पास ability है, because they can associate, they can understand कि आवाज कहां से आ रही है। Is that very clear? अब अगर आप मेंढक की बात करोगे, मेंढक इधर उधर देखता नहीं है कि कहां से आवाज आ रही है, right? So reptiles they really can't associate because they don't have corpora quadrigemina. Cool. So that is all with respect to corpora quadrigemina and cerebral peduncle जो है, cerebral peduncle का दूसरा नाम लिख लेते हैं बेटा, it is also called as crura cerebri. peduncle है, peduncle का मतलब एक stem like structure है ना, peduncle is a structure which is also seen in pineapple जो एक fruit है जिसमें एक central region, थोड़ा सा जो central पाइनएप्पल के पल्प पे जो सेंट्रल रीजन होता है जो थोड़ा सा टफ होता है खाने में, जनरली बच्चे खाते नहीं है ना। देखो गरीब बच्चे मेरे जैसे लोग खा लेंगे, है ना, जनरली बच्चे को फेंक देते हैं, तो दैट इज द मॉडिफाइड, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ स्टेम, तो उस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेडुंकल। तो वैसे ही एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इन द सेरेब्रल रीजन जिसको बोलते हैं क्रूरा सेरेब्राई। सो ये इनके जो इंफॉर्मेशन है उसको वो ट्रांसपोर्ट करेगा, इट इज जस्ट डूइंग अ रिले, ठीक है। सो क्रूरा सेरेब्राई, राइट। सो मिड ब्रेन में इतना ही पोर्शन है। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में और 3 चीजें हैं, ठीक है। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले वी टॉक अबाउट सेरिबेलम, ठीक है। ये इससे बोलने के लिए बता रहा हूं, इट इज नॉट कॉल्ड एज सेरिबेलम, इट इज जस्ट सेरिबेलम, राइट। सो cerebellum also referred to as metencephalon। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे, सर सेरिबेलम तो पीछे वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, तो टीलेन सही है। गलत है बेटा, मैंने आपको इसीलिए मीनिंग समझाया, बिकॉज आप टीलेन एंड मीटेन में कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ बच्चे तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो दोनों को फ्यूज कर लेते हैं और वो दे राइट metencephalon, doesn't make any sense, right? So metencephalon is your cerebrum, metencephalon is your cerebellum, ठीक है। So please don't write metencephalon and temencephalon ऐसे बकवास कुछ भी लिखना नहीं, ठीक है। तो cerebellum के पास होता है metencephalon, ठीक है। So last वाला पार्ट metencephalon। अब cerebellum is also called as your छोटा मेंदू, the little brain, right? Because it is associated with several functions। आज आप कहीं पे स्टेडी खड़े रह रहे हो because you are maintaining your equilibrium because of your cerebellum, right?
if you're able to walk straight, right, that is because of your cerebellum. अब आपने ये नोटिस किया होगा जो लोग मस्त दारू पीते हैं, है ना, so those alcoholics, right, alcoholics की चलने की पोजीशन बदल जाती है, that is because his cerebellum is highly sensitive to alcohol. ठीक है, a little amount of alcohol also disturbs the body position, body posture and gait, right? और अगर क्वांटिटी एक्सीड होते गया तब तो इंसान इधर गिरता है उधर गिरता है, राइट, बट इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कंज्यूम करते still your position is absolutely affected because your cerebellum is highly sensitive to alcohol. तो cerebellum आपका समझ में आ गया. सेरिबेलम के बाद ये डिटेल में करने वाले हैं हम, ठीक है, अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन याद कर लो, क्लासिफिकेशन याद कर लो, ठीक है. सेरिबेलम के बाद एक अनदर स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है pons varoli. Another structure called as pons varoli. pons का मतलब है ब्रिज, ठीक है, सो इसका मतलब है ब्रिज. So pons varoli is this area. Now let's try to label वो structure. मैंने आपको बताया कि corpora quadrigemina cerebral peduncle हम यहाँ पे लेबल नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, बट हम cerebellum को भी लेबल कर ही सकते हैं. तो this is your cerebellum. ये जो रीजन आपको दिख रहा है that is your pons varoli. Now pons varoli क्या कर रहा है? Pons varoli is again it is also one of the region जो कनेक्ट करता है. So pons varoli cerebrum और cerebellum को कनेक्ट कर रहा है. pons varoli दो cerebellar हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, दो जगह पे. इसका काम क्या है? सिर्फ ब्रिज बनाना, इसके और इसके बीच में ब्रिज बना, या ये इसके दो लोब्स है, दो पर्टिकुलर हेमिस्फीयर्स है, उसके बीच में कनेक्शन बना. So pons varoli is just a bridging center. Okay. The other structure which you can see, the last structure is the medulla oblongata. Also referred to as mylencephalon. ठीक है, अब mylencephalon क्यों बोला? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का नाम है माइलॉन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को हम एसोसिएट करेंगे विद द वर्ड कॉल्ड एज माइलॉन, ठीक है. तो mylencephalon, दैट पार्ट ऑफ द cephalon, अभी भी ये ब्रेन का ही पार्ट है ना, कि दैट पार्ट ऑफ द cephalon which will continue to form spinal cord, इसीलिए नाम ये दिया गया mylencephalon. अब medulla oblongata is extremely again important. क्यों? Because medulla oblongata has various important centers. मतलब आपकी ब्रीदिंग की सेंटर है वहां पे, आपकी कार्डियक सेंटर वहां पे है, राइट, आपकी वॉमिट सेंटर, डिग्लूटिशन सेंटर. सो ये सारे जो सेंटर्स है, एरियाज है स्पेसिफिकली, दैट इज इन दी मेडुला ऑब्लोंगेटा. इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन सी इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है. Now the other structures we'll try to label it and then we'll try to understand what is it. ठीक है, कल हमने बात किया था इसमें something called as gyri and sulci, right? So ये जो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा एलिवेशन जो दिख रहा है that is called as gyri and जो डिप्रेशन उसको बोलते हैं sulci. The gyri and sulci, the number of gyri and sulci is directly proportional to the IQ, intelligent quotient. सिंपल प्रिंसिपल ये है बेटा कि अगर गाइडेंस sulci ज्यादा है, इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इन अ स्मॉल एरिया, इन अ स्मॉल कैविटी इज लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेन सेल्स. जितना ज्यादा ब्रेन सेल्स उतना ज्यादा आपकी मेमोरी, राइट. इट इज नथिंग बट बेटा कि ये मेमोरी का जो कांसेप्ट है ना, सम पीपल हैव अ वेरी स्ट्रांग मेमोरी, सम पीपल हैव नॉट सो स्ट्रांग मेमोरी, राइट, बट मेमोरी कैन बी इंप्रूव्ड. इट इज वेरी सिंपल टू, एक सिंपल सा प्रिंसिपल बताता हूं, ठीक है, कि मेमोरी को इंप्रूव किए बिना मेमोरी इंप्रूव नहीं होगी. इट इज योर कॉन्शियस एफर्ट
which will improve your memory. ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ because a lot of people, a lot of students they struggle कि सर मेरे को तो ये चीजें याद नहीं रहता, right? Out of experience मैं बता रहा हूँ कि I always struggled with something called as math, कि मेरे को वो लॉजिक ही नहीं लगता था. But when you talk about, when you give effort, when you give time to improve your brain, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना एक ही इंटेंशन से पढ़ो. When you're studying the exam, when you're studying your school syllabus also, एक intention से पढ़ो that this will ultimately improve my memory. Don't just study for giving the examination. If you're doing it, that will, the entire sole purpose of the education system is lost, right? Always do it to improve your memory because somewhere down the line, जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा nerve connection बनेगा. एक सिंपल सा रीजन बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को जाने के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स है, देन देयर इज वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डेस्टिनेशन, राइट? एंड वो डेस्टिनेशन को जाने के लिए एक ही रास्ता है, राइट? एंड अगर उस रास्ते का कंस्ट्रक्शन हो गया, विल यू बी एबल टू, उस रास्ते में कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ता बंद कर दिया, विल यू बी एबल टू क्रॉस दैट कंस्ट्रक्शन साइट? नहीं, करेक्ट? सो समवेयर डाउन द लाइन here it is exactly similar to your memory, right? आपके पास stimulus है, आपका source है, and then you have the memory area, correct? For example, आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी सुना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी सुना है? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, ये भी आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, ये भी बताता हूं. Something called as short-term memory. बार short-term memory will get converted into long-term memory. For example, चलो इमेजिन कर लो कि मस्त साइकिल पे घूम रहे हो, है ना, और आपको आपके पेरेंट्स ने कुछ काम बोला है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई तो यहाँ शिगाना का के इस कॉर्नर पे इधर से राइट लो, उधर से लेफ्ट लो, और वहां पे एक दुकान है, वहां से अभी लॉकडाउन है तो वहां से भी सामान लेके आना, किराना लेके आना. सो फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा हूं तो आई विल ट्राई टू, देखो दो अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, दो अलग अलग सिनेरियोस बताऊंगा, ठीक है? तो जब व्हेन यू आर गोइंग ऑन योर ओन, राइट, तो मैं साइकिल चलाते मैं इधर देखूंगा उधर देखूंगा, बिकॉज मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या है कि जैसा मैं गया हूं मेरे को वैसे ही वापस आना है, राइट? सो दैट is a simple perception which you have. So when you are traveling, when you are going to the destination, you keep on seeing things around you, right? And when you come back, you are associating the way with respect to the things which you have seen. मतलब you are associating the address with respect to your memory. ये पहला consequences है, ये पहला सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो ये मान लो कि आप गए हो कोई, ओके, आप कहीं तो गए हो, है ना, यू आर ट्रैवलिंग. नाउ यू आर नॉट ट्रैवलिंग अलोन, यू आर ट्रैवलिंग विद योर मदर और योर फादर, है ना. तो तब आप क्या करते हो, मस्त अरे गाड़ी मेरे को थोड़ी चलाना है, मस्त गाने सुनते हो एंड मोबाइल पे गेम खेलते हो. सो हियर कॉन्शियसली योर एफर्ट विद रिस्पेक्ट टू, आपका मेमोरी विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड सराउंडिंग गायब हो. फिर दूसरे दिन मम्मी बोलती है, याद है कल हम लोग जो एरिया में गए थे वो एरिया में जाकर करके ये चीज लेके आना. एंड व्हाट इज योर आंसर? सिंपली यू से, अरे वो तो रास्ता मुझे याद नहीं है. क्यों याद नहीं है? बिकॉज वी वर नॉट कॉन्शियसली लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो अब ऐसा है बेटा कि मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार बार, अगर आप एक चीज को बार बार चीजों को पढ़ते हो विद रेगुलर इंटरवल, दैट विल शार्पन योर मेमोरी. मतलब अगर आप एक रास्ता ढूंढते जाते हो, पहले बार आपको दिक्कत होगी, राइट? दूसरे बार आपको दिक्कत होगी, पर तीसरे बार नहीं होगी बेटा, राइट? बिकॉज पहले बार मैं गया हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहां से लेफ्ट लेना है, अरे ये दो राइट, दो पर्टिकुलर इसके बाद लेन के बाद राइट लेना है. सो आई विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स, राइट? बट अगर मैं कॉन्शियस एफर्ट, अगर मैं वही रास्ता बार बार यूज कर रहा हूं, सो माय ब्रेन गेट्स यूज्ड टू इट. सो नेक्स्ट टाइम आई विल नेवर गेट लॉस्ट इन दैट पर्टिकुलर वे. सो बोलने का मतलब ये है, अगर आप एक चीज पढ़ते हो, नॉवेल किसी को याद नहीं रहता, राइट? बट गाने सबको याद रहते हैं, राइट? आंसर्स किसी को याद नहीं रहता, करेक्ट? बट नॉवेल की एक्सट्रैक्ट जो स्टोरी है वो याद रहता है, करेक्ट? अब ये क्यों है? बिकॉज गाना हम बार बार सुनते हैं एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट सुनते हैं. We try to understand that particular
understand, we try to correlate, we try to rhyme those words, but आंसर या फिर कॉन्सेप्ट जो है ये हमको इंटरेस्टिंग लगती नहीं है, राइट? सो देयर लाइज द फ्लॉ. इफ यू हैव एन इंटरेस्ट, ऑटोमेटिकली यू विल शार्पन योर मेमोरी, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मैथ वीक है, अगर किसी की मैथ वीक है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है. वो ऑप्शन क्या है? लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना? फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वैसे मैथ्स की सोल्यूशन देखते थे और एग्जाम में वैसे ही उतार के आते थे, राइट? बट यू नो, गरीब पीपल लाइक मी, आई लिटरली हैड टू सॉल्व एवरीथिंग. नॉट इवन द प्रूफ्स फॉर ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में भी हम कैसे प्रूफ्स होते थे, लोग सिर्फ प्रूफ्स पढ़ के जाते थे. आई लिटरली हैड टू राइट एवरीथिंग, बिकॉज वो है कि सम सेंटर ऑफ माय ब्रेन मे बी इज नॉट वेरी एक्टिव विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स एंड लॉजिकल थिंकिंग. मे बी दैट इज व्हाई आई एम अ बायो टीचर टुडे, राइट? बिकॉज इसके बाद ही मिनिमम मैथ्स होती है. सो बोलने का मतलब क्या है? To sharpen your memory, to increase your ability of memorizing, all you have to do is repeatedly keep on doing it. जब भी आप एक चीज पढ़ते हो बेटा, तो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है. मैंने आपको कंस्ट्रक्शन साइट का एग्जांपल बताया था, राइट? बीच में रास्ता बंद हो गया है. अब बट आपको कैसे भी करके डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो व्हाट डू? यू टेक अनदर रास्ता. आप एक डिफ्लेक्शन लेते हो, बट ये डिफ्लेक्शन कितना, ये डिफ्लेक्शन लंबा है, तो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने को टाइम लगेगा. That is what I mean by, if your memory is blocked, your nerves, your neurons, they take another traveling pathway, right? And that traveling pathway is somewhere down the line long. तो इसीलिए लोगों को उस, जब तक मेमोरी सेंटर तक आपके इंपल्सेस पहुंचते नहीं है, till that time, till that particular moment, you will not be able to memorize things. Is that very clear? तो आपका जो नर्व इंपल्सेस जो है, दे टेक अनदर ट्रेन, दे टेक अनदर पाथवे, बट अल्टीमेटली वो पहुंच जाते हैं, राइट? तो अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, बार बार अगर कोई चीज को पढ़ रहा हूं विद रेगुलर इंटरवल, अगर मैं चीजों को रिवाइज कर रहा हूं, सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम ट्राइंग टू मेक नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन इवन मोर फास्टर एंड इवन मोर वेरिड. मतलब सोर्स एक ही है, डेस्टिनेशन एक ही है, राइट? बट उस तक पहुंचने का रास्ता कितना है? मल्टीपल. एक बार पढ़ने से एक रास्ता मिला, दूसरे बार पढ़ने से दूसरा रास्ता मिला, तीसरे बार पढ़ने से तीसरा रास्ता मिला. सो नेक्स्ट टाइम, सो नाउ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन माय ब्रेन, राइट? अब जब मैं चीजों को याद करूंगा, तो माय ब्रेन विल यूज द शॉर्टेस्ट पर्टिकुलर, अब क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, माय ब्रेन विल यूज द शॉर्टेस्ट पर्टिकुलर पाथ to get into that particular destination. ये एक सिंपल एग्जाम्पलिफिकेशन दिया है मैंने आपको with respect to how your memory is being controlled. That is why we say this is again a fact-based verbatim which I am telling you that a human brain की capacity जो है to remember things is only 30 days, right? 31st day में आपकी memory थोड़ी सी blemish होते जाएगी, it will become a little faded, right? So it is extremely important to keep revising every 30 days. After every 30 days, जो भी चीज आपने पढ़ा है एटलीस्ट रिवाइज का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा कि आप बुक खोलो और उसको वापस पढ़ते रहो. रिवाइज का मतलब क्या होता है? आपने बुक खोला, एक बार नजरों के सामने से भी आपकी चीजें गई ना, इट इज एब्सोल्युटली, इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन, राइट? सो अगेन, आई ऑलवेज, बिकॉज यू गाइज आर इन योर ग्रोइंग, your growing time zone, right? And ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है आपके लाइफ का. एंड देन यू विल, आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग, यू विल गेट इनटू ईदर मैथ्स और ईदर बायोलॉजी और एनी पर्टिकुलर साइंसेस और एनी पर्टिकुलर educational field. So every particular educational field requires memory, every particular educational field requires effort. So unless and until you take up the effort, you will not be able to sharpen your brain. ये जो लोग हार मान जाते हैं ना कि नहीं अरे मैं तो वीक ही हूं, मेरी तो मेमोरी ही वीक है, सच पीपल आर दी मोस्ट, ये बोलते कि एक्सक्यूज देना है, ये इन लोगों को सक्सेस देखना ही नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूज देना होता है. सो फ्रॉम नाउ सी अंडरस्टैंड, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो फ्रॉम नाउ अंडरस्टैंड दिस कि आपको हर चीज हर बार रिवाइज करनी है. एंड जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट यू डोंट स्टडी ओनली फॉर गिविंग द एग्जामिनेशन, यू स्टडी फॉर एनहांसिंग योर ब्रेन. योर मेमोरी डज नॉट, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. तो आपकी मेमोरी हमेशा एनहांस होते रहेगी.
ठीक है, so that is with respect to memory, that is with respect to your that is with respect to various extra information with respect to your own educational background. Come back. So let's come back to this particular structure. Gyri and sulci से टॉपिक निकला था. Gyri and sulci जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा brain tissue. Is that right? What you can see here is another small gland. Again, very interesting and very important with respect to your body, and that is called as pineal gland. अब pineal gland को बोलते हैं the third eye gland. Again, a little more interesting. Why do you call it as a third eye gland? ठीक है, pineal gland जो है ये आपके sleep wake response को कंट्रोल करता है. Now let's try to relate these things. ये अलग अलग जगह पे पड़ी हुई चीजें हैं. Pineal gland is called third eye gland. Pineal gland is associated with sleep wake mechanism. So ये सब चीजों को हम correlate करेंगे. And what is the importance of pineal gland? राइट कुछ टाइम के बाद pineal gland रिग्रेस होने लगता है, कुछ टाइम के बाद pineal gland के ऊपर कैल्शियम का डिपॉजिट होने लगता है, डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से pineal gland की फंक्शनैलिटी कम हो जाती है. राइट सो लेट्स टॉक अबाउट pineal gland. इंटरेस्टिंग अगेन. तो pineal gland आपकी स्लीप वेक मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है. इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलेटोनिन. ठीक है बच्चों, मेलेटोनिन है, मेलानिन नहीं. मेलानिन इज द स्किन पिगमेंट. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा करूंगा अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो. सो मेलानिन इज योर स्किन पिगमेंट, मेलेटोनिन इज अ हार्मोन. ठीक है, सो मेलेटोनिन जितना सीक्रेट होगा, ब्लड में डिफ्यूज होगा, उतनी जल्दी उतना ज्यादा आपको नींद आने लगेगी. तो ये जो स्लीप एंड वेक में रिस्पॉन्स है, स्लीप एंड वेक साइकिल है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको मैं बोलता हूँ, है ना. अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में मैं उठी जाऊंगा. ऐसा बहुत ही मुश्किल ये है कि तुम्हारे मुंह पे बहुत गरम गरम धूप पड़ रही है, तब भक लाइट है और तुम उठे नहीं. मतलब तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो. प्लीज डोंट माइंड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. बट बोलने का मतलब ये है कि वी हैव एसोसिएटेड आवरसेल्फ कि हमको सुबह उठना है और रात को सोना है. ऐसे बहुत. और अगर मेरे को लेट्स फॉर एग्जांपल इफ आई हैव नाइट शिफ्ट, दैट्स कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड शिफ्ट, तो आई विल हैव टू एडजस्ट माय स्लीप वेक मैकेनिज्म. और पहले कुछ दिन तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है. अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग एनी टाइप ऑफ नाइट वर्क, राइट, तो मेरे को रात भर जागना और सुबह सोना है. और सुबह में इतनी एफिशिएंटली सो नहीं पाता, राइट, बिकॉज़ योर ब्रेन इज यूज्ड टू दिस. योर ब्रेन इज यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन द मॉर्निंग, राइट. सो ये सब चीजें हैं. और रात को योर ब्रेन इज यूज्ड टू डू नथिंग, राइट. सो बोलने का मतलब ये है बॉडी विल हैव टू एडजस्ट. पहले 2 दिन आपको तकलीफ होगी, बॉडी विल शो अप थ्रो अप, मतलब टेक्निकली एसिडिटी की तकलीफ होगी, उल्टियां होंगी, नौशिया होगा. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आप एडजस्ट करवा रहे हो, एंड योर ब्रेन इज सच अ स्मार्ट ऑर्गन जो कोई भी कंडीशन में एडजस्ट हो सकता है. ये इट इज नॉट लाइक अ क्या बोलते हैं उसको, I'm not getting a proper English word. It is not like a very sophisticated organ. ये कोई भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन, जो भी कंडीशन आप प्रोवाइड करते हो उस कंडीशन में यूज टू, कस्टम हो जाता है, राइट. तो बोलने का मतलब ये है बेटा, अगर इस क्लास में भी बच्चे होते तो मैं पूछता कि मैंने क्या बोला. आई कम बैक यार, आई रियली मिस दिस पर्टिकुलर क्लास. एनीवेज कम बैक. आई रियली डोंट वांट टू गेट इमोशनल ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. क्या बोल रहा था मैं? हाँ, we were talking about pineal gland, right? So pineal gland क्या करेगा? pineal gland आपके स्लीप वेक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करेगा. ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ पे अगर दिन है तो अमेरिका में नाइट है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन अ फ्लाइट हियर, इफ आई हैव टेकन अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ से मैं जब गया तो वहां पे इंडिया के हिसाब से वहां पे सुबह थी, बट अमेरिका के हिसाब से वहां पे रात है, राइट. सो विल आई बी फॉलोइंग द इंडियन रूटीन? नो, राइट. उसको बोलते हैं जेट लैग. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से रात को निकले, उधर सुबह पहुंचे, यहाँ से सुबह निकले, राइट, उधर रात को पहुंचे, और इन अमेरिका में इट इज स्टिल मॉर्निंग. सो विल यू स्लीप? यू शुड नॉट, राइट. दैट फेज इज कॉल्ड एज जेट लैग. ये टाइम जोन का हम लैग करते हैं. अगर वहां पे सुबह है तो वी विल डू आवर नॉर्मल डेली डे टू डे कोर्स एंड वी विल स्लीप अकॉर्डिंग टू देयर night, right. So बोलने का मतलब कि you are trying to make your brain used to all of this, right. So ये तो हो गया कि
बिना आपको नींद नहीं आएगी, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी इट इज अ लॉट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस, प्यूबर्टी के बाद जैसे बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, अब तो ऐसा हो गया कि मोबाइल, राइट। आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी दैट आई पास्ड आउट माय कोर्स, माय करिकुलम एंड देयर वाज नो मोबाइल फोन्स। आज बच्चे सिर्फ रात भर जागे रहेंगे बट दे वांट मोबाइल विद देम, राइट। सो बोलने का मतलब है आफ्टर प्यूबर्टी व्हाट हैपेंस, द अमाउंट ऑफ स्लीपिंग कंपैरेटिवली डिक्रीजेस। अब देखो ये इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि बच्चे क्लास में क्यों सोते हैं, राइट। सो दैट इज बिकॉज दे डोंट वांट टू पे अटेंशन, दे आर लेजी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं होता कि आप थके आ रहे हो, दिन भर थक गए और शाम को बराबर 7 बजे नींद आ रही है, राइट। सो ऑल ऑफ दैट, these are the just mere excuses. Come back for pineal gland again. pineal gland क्या बोल रहा है आपका कि आपके स्लीप को कंट्रोल करता है। प्यूबर्टी के बाद pineal gland पे क्या, बॉयज में स्पेसिफिकली, मेल्स में, कि कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से pineal gland की हार्डनिंग, एफिशिएंसी टू प्रोड्यूस मेलेटोनिन डिक्रीजेस। मेलेटोनिन अगर डिक्रीज हो गया तो हमको नींद नहीं आएगी। A lot of people they suffer from insomnia. Insomnia is sleepless nights. पूरी दिन पूरी रात वो ऐसे ही रहेंगे, राइट। सो कंप्लीटली दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप बिकॉज़ ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ मेलेटोनिन। अब दूसरा मैंने आपको बोला था व्हाई इट कॉल्ड एज अ थर्ड आई ग्लैंड। थर्ड आई ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बेटा बिकॉज़ according to Greek mythology and according to Indian mythology there are certain deities जिसको एक थर्ड आई दिया है, ठीक है। like for example Lord Shiva has a third eye. Now this can be associated as a symbolic structure, right? Third eye अगर मैं आज के materialistic world में के हिसाब से बात करूं कि it is again no one has third eye, right? So अब ये stories हमने पढ़ा होगा कि Lord Shiva opened his third eye and there was so much of damage, there was so much of destruction, catastrophic destruction on the earth and towards the humankind. So बोलने का मतलब क्या है, थर्ड आई इसलिए बोला है बिकॉज जहां पे ग्रीक गॉड्स एंड इंडियन गॉड्स के थर्ड आई थे एग्जैक्टली पैरेलल, एग्जैक्टली ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सिस, वो सेम एक्सिस पे आपका पीनियल ग्लैंड लाई करता है। मतलब अगर थर्ड आई यहां पे है तो आपका पीनियल एग्जैक्टली यहां पे लाई करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्ड आई ग्लैंड। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसको थर्ड आई ग्लैंड इसलिए बोला है बिकॉज़ pineal gland produces sleep and is during sleep you get into subconscious level, है ना। तो sleep is nothing but meditation. एक ऐसा आसन जहां पे आपके ब्रेन कंप्लीटली शांत हो गई है, you are thinking, you are doing nothing, absolutely no physical exercise, but your brain is thinking, right? So हम ऐसे बोलते हैं ना कि a lot of पहले के जमाने में a lot of people used to meditate and वो सालों मेडिटेट करते थे। What are they trying to do? They're trying to connect their subconscious brain, right? Subconscious brain. अब subconscious brain आपको तभी कनेक्ट होगा जब भी आप सो रहे हो, और सोना is associated with pineal gland. So all of this is very properly, nicely linked. Very clear? So third eye gland आपको क्यों बोलते हैं ये सब आपको समझ गया, ठीक है। Now look at this particular structure which you can see here in the cerebellum. Now there are certain tree-like structures. अगर cerebellum को कट किया तो ऐसे tree-like structures दिखेंगे, और ये tree-like structures किससे बने बेटा, ग्रे मैटर से, ठीक है। tree-like structure किससे बने हैं, ग्रे मैटर से। अब दो चीजें हैं, ब्रेन में होता है व्हाइट मैटर एंड ब्रेन में होता है ग्रे मैटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाइट मैटर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे मैटर, ठीक है। अब व्हाइट मैटर ग्रे मैटर अगर मैं ब्रेन की स्ट्रक्चर कट करके देखूं तो मेरे को कैरेक्टरिस्टिकली एक प्योर व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, प्योर व्हाइट कलर का रीजन दिखेगा, एंड एक साइड में तो थोड़ा सा ऑफ व्हाइट, थोड़ा सा ग्रे, मतलब स्लेट ग्रे नहीं, थोड़ा सा डार्कर देन व्हाइट, वो शेड दिखेगा। सो देयर आर टू शेड्स व्हिच यू कैन सी, ठीक है। इफ यू हैव टेकन, जस्ट इमेजिन दिस, टू शेड्स व्हिच यू कैन सी, the outer portion is gray matter and the inner portion is white matter. So brain का जो ये सेंट्रल अंदर की तरफ ब्रेन का जो कोर है, मैंगो का सीड, वैसे ही ब्रेन के अंदर का जो कोर है दैट इज कंप्लीटली व्हाइट मैटर, ठीक है। और ये कोर रीजन को बोलते हैं मीडियल पार्ट ऑफ द ब्रेन।
because it is towards the center. ब्रेन ऐसा है, ब्रेन के इस सेंटर पे, ब्रेन ऐसा प्लेस है बेटा, ब्रेन के सेंटर पे, मीडियल पार्ट, मीडियल का मतलब क्या है, सेंट्रल, टुवर्ड्स द सेंट्रल एक्सिस. सो ब्रेन का जो व्हाइट मैटर है, this region is completely white matter and that is in the medial part, whereas the बाहर का जो surface है, cerebral cortex जो है, that is in the lateral part. ठीक है. अब ग्रे क्यों है, व्हाइट क्यों है? व्हाइट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ. करेक्ट. सो हमने न्यूरॉन पढ़ा था इन द लास्ट ईयर, राइट. न्यूरॉन में हमने पढ़ा था कि माइलिन शीथ कहां पे होते हैं, एक्सॉन्स पे होते हैं, राइट. तो जहां पे माइलिन शीथ है, जहां पे एक्सॉन्स, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जहां पे आपको व्हाइट मैटर में बोल रहा हूं, देयर यू हैव कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स. जहां पे मैं ग्रे मैटर बोल रहा हूं, देयर यू विल हैव कलेक्शन ऑफ साइटॉन एंड डेंड्राइट्स. वेरी क्लियर. सो ग्रे मैटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटॉन्स एंड डेंड्राइट्स. ठीक है. व्हाइट मैटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली एक्सॉन्स. कौन से एक्सॉन्स? माइलिनेटेड एक्सॉन्स. वैसे भी सिमिलर, on the similar lines, your cerebellum also has two regions, outer gray matter, inner white matter. My mistake. Sorry, सही बोल रहा हूँ. Outer, one second, what did I tell? ये प्रॉब्लम है, बच्चे अगर रहते तो anyways, come back. So come back. I'm extremely sorry on that particular interruption. Cerebellum also has outer gray matter and inner white matter, very similar to your brain. Your brain also has outer gray matter, inner white matter. Similarly, your cerebellum also has outer gray matter, inner white matter. But अगर मैं ये white matter को देखूं तो कैरेक्टरिस्टिक एक ट्री का जैसा अपीयरेंस दिख रहा है, right? Hence, it is called as this structure, tree-like structure, is called as arbor vitae. Arbor vitae. Now, arbor here refers to tree. Vitae comes from the word vital, so it's the tree of life. Arbor vitae को हम दूसरा नाम बोलते हैं tree of life. ठीक है? Tree of life. Because cerebellum is extremely important. Cerebellum पे अगर मार पड़ी है तो इंसान unconscious हो जाता है. The person can also experience death. Right? So उस पार्ट का एक important tree-like structure जिसको बोला है arbor vitae और tree of life. एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है. कूल. ये छोटा सा जो हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो टी बटाने के जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट इज योर मास्टर ग्लैंड, विदाउट व्हिच यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी, एंड दैट मास्टर ग्लैंड इज योर पिट्यूटरी. ठीक है. मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी के सामने यहाँ पे एक छोटा सा एक्सटेंशन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक कायाज्मा. Optic chiasma. What is optic chiasma? It is the junction point where two optic nerves they cross. आंखों का एक नर्व ऊपर जा रहा है, ये दूसरा नर्व ऊपर जा रहा है, दोनों नर्व मतलब राइट लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट राइट पे जाएगा. ये they don't cross. जैसे मैं नर्व न्यूरॉन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, न्यूरॉन्स डोंट क्रॉस, वो ऐसे ही निकल जाता है. बट नर्व, देखो न्यूरॉन उसके अंदर है, नर्व is the macroscopic structure. For example, for example, जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी की वायर देखते हो, है ना, लाल कलर की वायर, ग्रीन कलर की वायर, तो ये ग्रीन कलर की वायर जो है, that is your nerve, correct? उसके अंदर अगर आपने इसको कट किया, it has tiny thin strands of copper wires, हर एक strand is a neuron. So nerve is a macroscopic structure, neuron is a microscopic structure. So two optic nerve they cross, and that cross का जो point है उसको बोलते हैं chiasma. So optic chiasma. ठीक है बेटा? One characteristic feature which I need to understand is this region. ये जो region है completely white दिखता है आपको. ये region जो है that is completely white, and that white appearance is again due to transverse fiber. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम. कॉर्पस कैलोजम. ठीक है. अब कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम क्या है? इट इज कनेक्टिंग टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. ये है क्या बेसिकली? इट इज ट्रांसवर्स. जनरली अगर मैं ये बात करूं, न्यूरॉन्स की बात करूं, न्यूरॉन्स
ब्रेन की तरफ, मतलब ऐसे यू कैन से स्ट्रेट और ब्रांचिंग टाइप के जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूरॉन्स की पोजीशन की बात करूं तो ईदर दे विल बी प्रेजेंट दिस वे और दे आर प्रेजेंट इन दिस डायरेक्शन। ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना, सेंसरी इंपल्सेस लेने के बाद ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट। सो इट इज ईदर फ्रॉम लोअर पोर्शन टू द अपर पोर्शन एंड अपर पोर्शन टू द लोअर पोर्शन। बट ये एक ऐसा रीजन है जहां पे न्यूरॉन्स ट्रांसफर जा रहे हैं फ्रॉम दिस एरिया, ये चेंबर से ये चेंबर में, right? So I told you in the last class, I told you that your cerebrum has two hemispheres, two semicircular hemispheres, left and right. उसमें भी मैंने आपको बोला था कि most of the individuals का left hemisphere is greater, larger in size as compared to right hemisphere. क्यों? ये कभी proportional नहीं होते, right? Because most of your body is controlled by most of your physical activity is done by your right side, है ना? और most of your right side of your body is controlled by the left side of the brain. Left side of your body is controlled by the right side of the brain. Correct? So your left hemisphere is majorly bigger as compared to that of the right hemisphere. Left और right को जो connect करता है वो ये है. तो ये ऐसे ट्रांसफर्स जा रहे हैं. ट्रांसफर, ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है. इन दोनों के बीच ऐसा ट्रांसफर्स कनेक्शन है जिसकी वजह से दोनों हेमिस्फीयर ज्वाइन हो गए. And that is called as corpus callosum. Very clear? So what is the role of corpus callosum? It is regulating the impulses with respect to left and right hemisphere. जो information left में आया है वो right hemisphere में भी जाएगा due to corpus callosum. So that was with respect to the structure. ये LS of the brain आपको diagram पूछा जा सकता है examination में. That is all with respect to the structure of human brain. Right? So I told you that we will be doing rhinencephalon. Rhinencephalon के बारे में हमने already बात कर लिया, associated with smell. Cerebrum के बारे में in the last class I gave you different lobes. तो cerebrum जो है उसके 4 लोब हैं, right? I told you F pod, correct? F pod, frontal, parietal, occipital and temporal, correct? और आपके 5 senses हैं. Frontal lobe is only associated. I want you to make notes for this. ठीक है, frontal lobe is only associated with motor skills, right? What are those motor skills? Judgment, creativity, aptitude, logical reasoning, है ना, presence of mind. ये सब जो हम बोलते हैं ना कि किस टाइम पे क्या बात करनी है, that is presence of mind, right? All of those ability, motivation, है ना. Some people are extremely motivated. Some people are extremely, they will fill up with negativities. So ये सब जो aspects है, they are all controlled by they have, these centers are present in your frontal lobe. ठीक है, तो आपकी motor, every motor particular skills, है ना, जो भी आप चीजें बात कर रहे हैं, all of that is associated with your frontal lobe. और frontal lobe में एक area है which is called as Broca's area. फ्रंटल लोब में एक एरिया है, ये आज का असाइनमेंट है. वेट वन राइट एंड राइटिंग द रिसर्च टॉपिक हियर. अच्छा, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज ब्रोकास aphasia. Now what do you mean by Broca's aphasia? That we discussed in the next class. I will also देखो टॉपिक निकला तो मेरे को बताना पड़ता ही है. There is a region in your left hemisphere which is called as left hemisphere of your frontal left hemisphere. ठीक है, और left hemisphere in the frontal lobe of the left hemisphere there is an area called as Broca's area of motor speech, right? So for example, if you are listening, for आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहा हूँ तो इमीडिएटली योर आंसर विल बी इन इंग्लिश. अगर मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ इमीडिएटली योर आंसर विल बी इन हिंदी, प्रोवाइडेड इफ यू नो द लैंग्वेज. अगर आपने कभी इंग्लिश सुनी ही नहीं है तो आप समझने की कोशिश करोगे, देन यू विल इंटरप्रेट इट, यू विल बिकॉज़ यू आर कॉन्शियस हियर, राइट? अगर सो ये जो बातें हैं यहाँ पे कि व्हाटएवर यू स्पीक, है ना, व्हाटएवर यू स्पीक, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज व्हिच यू स्पीक, ये स्पीकिंग की जो एबिलिटी है, मोटर स्पीच एरिया अलग है, मोटर स्पीच एरिया अलग है, वेयर यू आर ओनली स्पीकिंग. Broca's area of motor speech is associated with speaking a particular language. ठीक है, so अगर मैं एक लैंग्वेज पढ़ रहा हूं
है ना, और मैं लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहा हूं, व्हेन आई एम स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट इज व्हेन आई एम इंप्रूविंग द ब्रोकाज एरिया। दैट इज व्हाई वी से अगर मेरे को इंग्लिश इंप्रूव करनी है, यू विल हैव, देयर इज नो पर्टिकुलर ऑप्शन, यू विल हैव टू स्पीक। आप पढ़ के इंग्लिश में लिटरेचर ले लोगे, पीएचडी ले लोगे, but unless and until you speak, you will have individuals with whom you can speak, or you will have a mirror with whom you can speak, right? So unless and until you speak, your Broca's area will not be polished, your Broca's area will not be developed. अगर Broca's area develop नहीं हुआ तो आप में फ्लुएंसी कभी आएगी नहीं। So Broca's aphasia क्या है? I want you to explain, or I want you to write it down in the next class. Write it down and we will discuss it in the next class. ठीक है, कहां पे है ये? फ्रंटल लोब में। ठीक है, तो फ्रंटल लोब में ये सारे स्किल्स है। जजमेंट, अगर मैं जजमेंट की बात कर रहा हूं, जजमेंट का मतलब वो नहीं ऑर्डर वाला जजमेंट नहीं, ठीक है। जजमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना, कि कौन से इस पे कितने स्पीड कंट्रोल करनी है, अगर मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूं तो कितने डिस्टेंस पे मेरे को रिवर्स लेनी है, ऑल ऑफ दैट इज अ जजमेंट, है ना। प्रिडिक्शन भी बोल सकता हूं मैं, right? Prediction, predictive skills, intuition, all of that is associated with your frontal. ठीक है, parietal में आता है F-quad। parietal में क्या क्या है बेटा? parietal में आपकी बाकी, parietal is also called as somatic area, so pain, pressure, touch, pain, pressure, touch, so ये सब जो impulses है, sensory inputs जो है वो parietal lobe है। तो frontal lobe is completely motor, फ्रंटल लोब हो गया, पैराइटल लोब इज मेजरली सेंसरी। ठीक है, तो पेन, प्रेशर, टच, ठीक है, टच, पेन, प्रेशर, टच, एंड ऑल्सो एक और टी आएगा, टंग, पीपीटीटी, ये याद रख लो आप। ठीक है, पीपी इज पेन एंड प्रेशर। अब पेन एंड प्रेशर देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने मारा है, जोर से मारा है, तो इसका मतलब ये बॉडी हैज एक्सपीरियंस, दैट पर्टिकुलर टिश्यू हैज एक्सपीरियंस्ड प्रेशर। ठीक है, और उस प्रेशर के वजह से पेन एक्सपीरियंस हुआ, दैट इज एसोसिएटेड, दैट इज कंट्रोल्ड। किसी लोग, दैट इज सीन इंटरप्रेटेड इन योर पैराइटल लोब। कुछ लोगों को पेन कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोगों को पेन कंट्रोल करने की एबिलिटी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल हियर ऑल्सो आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल व्हिच यू हैव एक्सपीरियंस्ड। Everyone has experience. This chapter is all about experience, right? So, for example, अगर आपको कोई जगह पे चोट लगी है एंड फिर भी आप स्कूल जाते हो, है ना, कोई इंजरी हुई है, स्कूल जाते हो, एंड इन दिस स्कूल यू विल नॉट बी एबल टू फील दैट पेन। मतलब बोलने का मतलब ये है the intensity of pain is comparatively reduced, right? बट वही चीज अगर आप शाम को घर पे रहते हो, शाम 7-8 बजे में आपकी पेन की जो इंटेंसिटी है that will comparatively increase। अब ये क्यों हो रहा है, राइट? सेम ही इंजरी, ऐसा थोड़ी हो गया कि रात को बढ़ गई और सुबह नहीं की। बोलने का मतलब ये है कि सुबह in the early day to day you were busy with your day to day schedule, so your brain did not get enough adequate time to process the information of pain, right? इसलिए you did not experience that, but शाम को your brain has used to this particular cycle, शाम को सब कुछ शांत होने वाला है, subconsciously you know कि अभी मेरे को सोना है, 10 बजेगा, 11 बजेगा, है ना, और मैं सो जाऊंगा ढोल जैसे, राइट? So बोलने का मतलब ये है कि subconsciously your brain is trying to control, subconsciously your brain knows कि अभी सोना है, and your brain is trying to control all the other physical activities. So जो activities ज्यादा impactful है वो आपको ज्यादा टेक्निकली वो आपको ज्यादा मोटर एबिलिटी देगा। फॉर एग्जांपल सुबह आपको पेन एक्सपीरियंस इसलिए नहीं होता बिकॉज योर ब्रेन इज एक पर्टिकुलर मशीन को बहुत सारे काम करने हैं, और शाम को एक ही पर्टिकुलर मशीन को एक ही काम करना है। सो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पेन इंक्रीजेस। सो पीपीटीटी इन द पैराइटल लोब, प्रेशर एंड पेन। प्रेशर का मतलब एयर प्रेशर नहीं है, फॉर हेवेंस सेक। प्रेशर का मतलब एनीथिंग योर बॉडी एक्सपीरियंसेस प्रेशर, है ना। अगर कान में किसी ने जोर से चिल्लाया तभी भी प्रेशर एक्सपीरियंस होता है बिकॉज ऑफ दी साउंड, एयर। किसी ने अगर आपको मारा है तो प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है। इज दैट वेरी क्लियर? सो दैट इज प्रेशर। पेन, टच, ये भी टच है। अभी देखो टच की भी एबिलिटी है,
राइट। टच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद प्रेशर। कोई लोग ऐसे टच करते हैं, कोई लोग ऐसे टच करते हैं, तो ये भी प्रेशर की एबिलिटी है, वेरिएशंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। टंग मतलब गस्टेशन, टंग की जो रिसेप्टर्स है, राइट, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन योर पैराइटल लोब। मतलब टंग के रिसेप्टर्स नहीं माइंड से, टंग के रिसेप्टर्स तो टंग पे होंगे, तो ये जो रिसेप्टर्स जो इंफॉर्मेशन कैरी करेंगे दे आर प्रेजेंट इन योर पैराइटल लोब। ये टेस्ट इज आल्सो एसोसिएटेड डिफरेंट। कुछ लोगों को इतना तीखा खाना पसंद है, कुछ लोगों को मतलब थोड़ा सा भी मिर्ची लग गई, सो दे स्टार्ट यू नो सैलिवेटिंग लाइक डॉग्स। सो बोलने का मतलब ये है, अगेन इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इज इट वेरी क्लियर? अगर आप कोई अमेरिकन को पानी पूरी खिला दोगे, वो भी तीखी वाली, है ना, तो सबकॉन्शियसली उसको यही लगेगा कि मेरा पेट खराब है, पेट खराब हो जाएगा, and he will not be able to take up that particular taste because his brain has never experienced the spice. Correct? Actually, spice ऐसा कोई taste है नहीं, there are only 4 taste, that is sweet, sour, bitter and salty. ये 4 ही taste है। ये specifically Indian customized taste है, that is तीखा, कम तीखा, ज्यादा तीखा, लाल मिर्च वाला तीखा, झंझनी तीखा, etc. So this is just a localized taste or trait. So पैराइटल हो गया, और ऑसिपिटल पे आते हैं। ऑसिपिटल क्या कंट्रोल कर रहा है आपका? ऑसिपिटल आपका विजन कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली टेम्पोरल पे और 2 इंफॉर्मेशन आ गए, ठीक है। टेम्पोरल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एक है ऑल्फैक्शन, आओ, टेम्पोरल पे आओ है, एक है ऑडिशन एंड दूसरा है ऑल्फैक्शन, ए एंड ओ, ठीक है। 5 सेंसर्स डिवाइड हो गए। सो बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि if a person is hearing music, which area is being stimulated? कौन सा एरिया स्टिमुलेट होगा बेटा? कौन सा रीजन ऑफ द, कौन सा लोब ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट होगा? टेम्पोरल लोब। वेरी क्लियर? टीपीटीटी एंड आओ, ठीक। दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू सेरेब्रम। डायेनसेफ्लॉन के बारे में हम बात करेंगे अभी। डायेनसेफ्लॉन इज एसोसिएटेड विद एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब एपिथैलेमस जो आपको यहाँ पे लिख रहा है, एपिथैलेमस इज एसोसिएटेड विद 2 important function. One is it is associated with pineal gland, and दूसरा it is associated with something called as choroid plexus. अब choroid plexus का फंक्शन क्या है? ये आपके सिलेबस पे बाहर का टॉपिक है। choroid plexus का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ CSF। अब ब्रेन में एक रेगुलेटिंग फ्लूइड है जो कंटिन्यूअसली रेगुलेट हो रही है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज CSF, जो ब्रेन को नरिशमेंट देता है, जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स, ब्रेन में भी ऐसी कैविटीज है बेटा, ठीक है। सो जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में इट इज कंपैरेटिवली फिल्ड एंड इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ buoyancy टू योर ब्रेन, ठीक है। तो एपिथैलेमस एसोसिएटेड विद सम, एपिथैलेमस का एक पार्ट एसोसिएटेड विद CSF प्रोडक्शन एंड pineal gland. थैलेमस इज रिले, थैलेमस ये अंडाकार स्ट्रक्चर है, इट इज ओनली रिलेइंग द इंफॉर्मेशंस। कुछ काम नहीं, इधर से इंफॉर्मेशन उधर जाएगा, उधर से इंफॉर्मेशन इधर जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स ये क्या है? In other words, this is just like आओ बहन चुगली करे, इधर से इंफॉर्मेशन उधर, उधर से इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज अगेन, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हम लिखेंगे, इन सबके फंक्शन हमने लिखे नहीं, बट हाइपोथैलेमस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो वी विल लिस्ट आउट द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो आई विल हैव टू इरेज दिस मच, I will have to erase this much and then we will try to put up the, चलो एक काम करते हैं बेटा, सेरेब्रम हमने लिख लिया है, ठीक है। हम डायेनसेफ्लॉन के बारे में लिखते हैं, डायेनसेफ्लॉन के सबके बारे में लिखते हैं, व्हाटएवर जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है सिलेबस में, सिलेबस के बाहर है, मैं आपको बता दूंगा कि जो आपके सिलेबस के बाहर है। सो व्हेन यू रीड इट विद दैट अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। So what were we discussing? We were discussing डायेनसेफ्लॉन, ठीक है। डायेनसेफ्लॉन का पहला पार्ट क्या है बेटा? एपिथैलेमस। एपिथैलेमस इज एसोसिएटेड with anterior choroid
CSF प्रोडक्शन, मैं इसका फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। CSF अभी मैंने बताया था, अब मैं वापस नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूं। CSF is cerebrospinal fluid, that fluid which is circulating in your brain and also circulating in your spinal cord. Cool? So ये हो गया। दूसरा क्या है? associated with pineal gland. What is pineal gland doing? Pineal gland produces melatonin, and it is this melatonin which is responsible for sleep wake cycle. ये sleep wake cycle को दूसरा नाम है biological clock, इसी को दूसरा नाम है circadian rhythm. circadian rhythm, ठीक है। I will not be waiting a lot of time, मैंने अपने आप को वहां से अलग कर दिया है ना। I will not be waiting for a lot of time, ठीक है। You will have to pause the video and if you want you can write it down, ठीक है। अब नोट्स बनाने के लिए आपको बार बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा, ठीक। ओके, एपिथैलेमस हो गया। सेकंड पोर्शन लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है? थैलेमस। A lot of students get confused in this section, okay? ये सेक्शन कंफ्यूज बिल्कुल करेगा। मिड ब्रेन तो ऐसे बच्चे मिड ब्रेन को डायनेसेफ्रॉन में कंफ्यूज कर लेते हैं, राइट? डायनेसेफ्रॉन इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन, मिड ब्रेन इज अ सेपरेटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। Diencephalon can be seen as a separate structure, but midbrain can be seen as a separate structure in your brain. ठीक है? So thalamus is also, it has RAS center. It has RAS. RAS refers to reticular activating system. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम है रिले। इट इज द रिले फंक्शन, क्या है उसका? रिले सिस्टम। देखो बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ड है ना, रास। ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है उसका मतलब समझ लेते पहले। रेटिकुलर का मतलब है डेंस ब्रांचिंग, ठीक है। एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब रिले है बेटा, आप ये समझ लो, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, इफ देयर इज डेंस ब्रांचेस, है ना। आपने नर्व इंपल्सेस में कंडक्शन भी ऐसे वीडियो वगैरह में देखे होंगे। एक जगह से इंपल्स तुरंत सब जगह पे स्प्रेड हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक इफ यू हैव सीन एवाटार में वो ट्रीज बताए हैं, बायोल्यूमिनेसेंस के ट्रीज बताए हैं, राइट? सो एक पर्टिकुलर लाइट इमीडिएटली स्प्रेड्स अक्रॉस द एंटायर ब्रांचेस, राइट? सो रेटिकुलर का मतलब क्या है? ब्रांचेस। एक्टिवेटिंग सिस्टम मतलब एक पर्टिकुलर इंपल्सेस वो स्प्रेड्स अक्रॉस। मैंने आपको ये बताया था, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस दैट विल टेक मल्टीपल पाथवेज टू रीच अ डेस्टिनेशन। सो अगर मल्टीपल पाथवे से वो कोई एक शॉर्टेस्ट पाथवे से पहुंच गया, मेरा काम तो हो गया, राइट? सिमिलरली यहाँ पे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का मतलब ये है, इट इज रिलेइंग और इट इज कनेक्टिंग एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सो सिर्फ रिले सेंटर आपको इतना याद रखना है, ठीक। हाइपोथैलेमस लिखना है आपको। हाइपोथैलेमस हम लिख देंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस मच। Okay. The next part is called as, third part को बोलेंगे बेटा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
इसको दूसरा ऐसे कॉमन लेमैन्स टर्म, यू नो, आप जैसे मेरे जैसे सादे सादे लोगों के टर्म्स में हम उसको बोलेंगे सुप्रीम कमांडर। After you watch this particular video, please comment on the Google Classroom app that should I be using more of Hindi, because आज के लेक्चर में मेरे को ऐसे लगा था I was using a lot of Hindi, है ना, but somewhere down the line is not really impactful. So please let me know if this much Hindi is enough, or should I incorporate more Hindi, or should I limit the amount of Hindi which I use, right? So because देखो professionally the lecture should go in English, because the more you listen to this particular language, the more you will try to interpret it. Again, जितना ज़्यादा आप एक language सुनोगे, उतना ज़्यादा आपकी memory with respect to this particular language will increase. So please let me know. I will be waiting for your comments. Come back. अब इसको सुप्रीम कमांडर क्यों बोलते हैं? Why do you call it as supreme commander? Because it is controlling the master gland. सुप्रीम और मास्टर है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को कंट्रोल करने वाला सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोल नहीं बट हाई कोर्ट के जजमेंट को पास करने वाला, होकार नाकार देने वाला सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को होकार और नाकार देने वाला कौन? हाइपोथैलेमस, दैट इज सुप्रीम कमांडर, right? Because hypothalamus produces hormones which are controlling the hormones of the pituitary. Pituitary produce करता है, for example, एक एग्जांपल लेते हैं, बाकी का एग्जांपल केमिकल कंट्रोल में। एक एग्जांपल क्या है बेटा? Pituitary produces growth hormone. अब ये growth hormone कितना प्रोड्यूस करना है? इस कंट्रोल बाय hypothalamus. So hypothalamus produces another hormone called as growth hormone releasing hormone and growth hormone inhibiting hormone. ठीक है, GHRH, GHIH। तो ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? हाइपोथैलेमस। अगर ये प्रोड्यूस नहीं होंगे तो पिट्यूटरी को कौन इंपल्स देगा? है ना, पिट्यूटरी अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकता बेटा, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सो पहला फंक्शन वी ट्राई टू राइट डाउन। ऑन एन एवरेज हाइपोथैलेमस की वेट लिख लेते हैं हम बेटा, 4 ग्राम्स का वेट है, ठीक है, 4 grams का वेट है। लेट्स ट्राई टू पुट अप द फंक्शंस हियर, ठीक है। पहला तो फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स लाइक, एग्जांपल लिख लेते हैं, हॉर्मोन्स लाइक GHRH, GHIH, then there is another hormone called as ADH, there is another one called as oxytocin। ये डिटेल में केमिकल कंट्रोल में बात करेंगे, अभी आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड पोर्शन, सेकेंड फंक्शन इज कि इट इज थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी। थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी मतलब वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। देखो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, क्यों ऐसे एकदम न्यूबॉर्न बेबीज को हम कपड़े वपड़े से कवर करके रखते हैं, क्यों ऐसे उगड़ा नगड़ा नहीं छोड़ सकते आप, है ना। बोलने का मतलब ये है व्हाई, बिकॉज द चाइल्ड माइट एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या है बेटा, अगर आपको मैंने कहीं से उठाकर शिमला में डाल दिया, सो विल यू डाई? नहीं ना, हम ऐसे we'll try to shiver, we'll try to dissipate as much as heat as possible, and then इधर कुछ भी नहीं होगा तो हम ऐसे ऐसे अंदर ब्लैंकेट डाल के सो जाएंगे, राइट। बट वाई? बिकॉज ब्रेन का थर्मोस्टेट इज एडजस्टेबल। आप कोई भी एनवायरमेंट पे जाओ, आपकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज, ठीक है। इवन इफ यू गो टू आर्टिक, इवन इफ यू गो टू अफ्रीका, डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, आपकी इंटरनल टेम्परेचर इज रेगुलेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट छोटे जो न्यूबॉर्न बेबीज है, न्यूबॉर्न बेबीज का थर्मोस्टेट इज नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग, जस्ट न्यूबॉर्न है ना, तो एंड द चाइल्ड एक्सपीरियंसेस अ टेम्परेचर शॉक, इसलिए बच्चा रोता है, राइट। इनसाइड द मदर्स वूम इट वाज नाइसली इन अ कोजी एनवायरनमेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे बच्चा डिलीवर होता है तुरंत वो आ जाता है इनटू अ एसी नाइस एयर कंडीशनड ऑपरेशन थिएटर, सॉरी,
ऑपरेशन थिएटर। सो कम से कम 10 डिग्रीज का टेम्परेचर शॉक है, 10 डिग्रीज का शॉक, एंड दैट शॉक, टेम्परेचर शॉक बेसिकली कॉजेज द मेक्स द बेबी क्राई। ठीक है, अगर बच्चा रोता नहीं है तो डॉक्टर्स उसको चिमटी निकालते हैं, क्रूरता से मारते हैं, देन और दे ट्राई टू put up a nozzle and they try to push up the air, right? Pump से air push करते हैं so that the baby starts reciprocating to the impulses or stimuluses which we give, right? So बच्चों का thermostat is not well developed. So बच्चे, छोटे बच्चे जो they can easily die because of hypothermia, decreased internal body temperature. Do you agree with this particular point that all your metabolic activities will function at their best at 37 degree Celsius, right? So बच्चे अगर हाइपोथर्मिया एक्सपीरियंस करते हैं, automatically the body का internal temperature will start dropping and the child might suffer from hypothermia and even death, right? So वो thermostat, इसीलिए हम उस बच्चों को complete एकदम पूरा मम्मी बना कर रखते हैं, राइट? सिर्फ मुंह खुला रहता है ना। और एक चीज है बेटा, देखो मैंने आपको ये बताया था कि न्यूबॉर्न बेबीज हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन फैट, बिकॉज ये ब्राउन फैट हीट रेगुलेशन, हीट ट्रैपिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे आप बड़े होते जाते हो, एडल्ट होते जाते हो, तो आपकी अमाउंट ऑफ ब्राउन फैट इज डिक्रीज। सो ये अडैप्टेशन है फॉर दी चिल्ड्रन, राइट? सो सेकंड फंक्शन क्या है बेटा? टेम्परेचर रेगुलेट करना, थर्मोस्टैट। थर्ड फंक्शन इज इट हैज ऑस्मोलैरिटी सेंटर। मतलब आपके हाइपोथैलेमस में देयर आर सेवरल ऑस्मोरिसेप्टर्स। अगर ब्लड की सॉल्ट लेवल इंक्रीज हो गई, सो दैट विल स्टिमुलेट योर हाइपोथैलेमस एंड दैट हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड एज एडीएच, और ये एडीएच वाटर और सॉल्ट बैलेंस को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? वी डू इट इन दी नेक्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, सो इट इज ऑस्मोलैरिटी सेंटर, हार्मोनल की एरिया, हार्मोन हो गए, थर्मोस्टैट हो गया, ऑस्मोलैरिटी सेंटर्स हो गए। इसके अलावा these are the three major functions which you need to remember. Is that right? इसके अलावा there are few additional functions, a few additional functions which we need to remember. Just a second. I'm just checking if I've missed out on something. ठीक है, बस इतना ही बेटा। कंट्रोल, विजुअल एक्टिविटी, ऑस्मो रेगुलेटर, वही है। ठीक है, ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक और फंक्शन लिख लो, सटाइटी सेंटर, हंगर सेंटर। सटाइटी सेंटर ऑल्सो रेफर टू एज हंगर सेंटर। एंड फिफ्थ फंक्शन ले लो, associated with limbic system. Limbic system is the emotional brain. Limbic system is the emotional brain. आज का आपका असाइनमेंट क्या है? एक असाइनमेंट था, रिसर्च टॉपिक था ब्रोका's aphasia, दूसरा असाइनमेंट है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, tomorrow in the next class we will talk about interesting facts with respect to limbic system। कि लिम्बिक सिस्टम है क्या बेसिकली, है ना? ये एक ऐसा सेंटर है जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। छोटे बच्चों को कोई इमोशंस नहीं होते हैं बट इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं होते हैं। As you grow older and older, you start understanding the society, आपको दुनियादारी पता चलती है, you become emotional or you become stone hearted। ये सब जो चीजें हैं associated with limbic system। Also one important function which our limbic system does is sexual responses associated with sexual arousal, है ना? And sexual activities, इस सब आपके limbic system कंट्रोल कर रही है। So दो assignment, Broca's aphasia and limbic system। So that is all with respect to hypothalamus, that is all with respect to forebrain। So आज के lecture में we spoke a lot of topics, related to your subject, related to your syllabus, and a few information which I think personally should be important and you should be knowing all of this,
राइट। सो देखो आज के लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, और जो भी आपको मैंने मेमोरी के बारे में बताया है, मेक श्योर दैट यू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड एंड कीप रिवाइजिंग थिंग्स, है ना। कुछ भी नहीं हुआ आपके पास, अगर बहुत ही ज्यादा बोरियत आ गई तो कोई एक नॉवल पढ़ लो बेटा, बट ऑलवेज डू नॉट मेक योरसेल्फ कीप आइडल, ऑलवेज कीप इम्प्रोवाइजिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। कुछ तो अपने, अब ये टाइम है क्वारंटाइन के टाइम पे, आपको ये समझ लो कि यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रोवाइज ऑन योर पर्सनालिटी, सो स्टार्ट लर्निंग समथिंग, है ना। इधर लर्न कैलीग्राफी सीख लो, वो आपके हैंड राइटिंग में हेल्प करेगा, या कुछ भी आप सीख लो, मतलब डोंट जस्ट सिट आइडल, डोंट जस्ट वेस्ट योर लाइफ, राइट। कुछ तो सीखो so that it will improvise your brain and somewhere down the line it will be helpful, it will make you stand out of the crowd. Is that very clear? So that is all for today. It was an extended lecture. Thank you so much for your patience and God bless you. Have a good day.